अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum. In the name of Allah, who is most merciful and magnificent, I am Priya Iqbal, being mentor of class 8. How are you, everyone? I hope so. You all are doing good. In our today lecture, we will discuss about the second chapter of class 8, dialogue. Okay. First of all, you should have knowledge, proper knowledge about what is the meaning of the dialogue. It is necessary. You must have knowledge. Is it necessary? Sorry, is it necessary dialogue must have between two people? Yes or no? Okay, is it? Before starting the lecture, I will give you a brief introduction about the dialogue and about the questions which are mentioned on the front page of the chapter. What is the meaning of the sentence? We will know about how we use has and have, collective nouns, and all other things which are mentioned on the front page. Okay, dialogue is a conversation between two or more people. You must use simple and compact language during a dialogue. Okay, don't use complex idioms and phrase type of things during a dialogue. Because your language, your style, your speaking style, what kind of words you are using in your communication when you are talking to other people shows your personality. Your language has a lot of impact on your personality. Okay. There are few questions which are mentioned on the front page. Let's discuss them before starting the chapter, before starting the reading of the chapter. Okay. Here is this question. After completing this lesson, the student will be able to use and understand present perfect tense, use of has and have, write a note of thanks, make a sentences, use adverbs, and the use of collective noun. Okay. First of all, let's talk about present perfect tense. The present perfect tense that link the present and past some way. We use present perfect tense for different situations. For example, for experience, for describing action. We also use present perfect tense when we are talking about change. Okay. I will give you a few examples. First of all, when we are using present perfect tense for experiences, okay, I have seen an alien. This is an example of experience. कि उसने कुछ देखा है, that's why he is talking about something that he have seen. Okay, when we are talking about change, then we will also use present perfect tense. For example, I have bought a car. मैंने कार खरीदी है, ये भी एक चेंज है. पहले इसके पास नहीं थी, अब उसने खरीदी है, तो ये एक चेंज है. तो इसमें भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं. ओके. जॉन हैज ब्रोकन हिज लेग. जॉन की टांगे टूट गई हैं. जॉन हैज ब्रोकन हिज लेग. ये भी हम लोग चेंज की बात कर रहे हैं. देन भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे. हैज द प्राइस गॉन अप. क्या जो कीमतें हैं वो दिन ब दिन बढ़ रही हैं. ओके. ये भी हम लोग चेंज की बात कर रहे हैं. हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कॉन्टिन्यूस सिचुएशन के लिए भी यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, कोई एक्शन है, वो पास्ट में स्टार्ट हुआ था बट स्टिल उसके ऊपर वर्किंग हो रही है, तो हम लोग तब भी उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट वो सॉरी यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, आई हैव वर्कड हियर सिंस जून. ओके. ही हैज बीन इल फॉर 2 days. तो इन सिचुएशन के लिए भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं.
Okay, let's move to the next one, that is use of has and have. We use has and have for possession. For example, when we have something, then we will use the helping verb has and have. Okay, we use have with the pronoun I, you, we, for example, plural verbs, and we will use has with singular, he, she, it. I will give you a few examples where we use has and where we use have. Have. I have a great English teacher. मेरे पास बहुत अच्छे English teachers हैं. We have a meeting at 12 o'clock. We have a meeting. Mean we word यूज हुआ है, then जो helping verb है वो possession के लिए वो क्या यूज किया उसने, have यूज किया. अगर यहाँ पे I यूज होता, I have a meeting, तो वहां पे have नहीं आना था, सॉरी have ही आना था. I have a meeting के जो हम लोग I है इसमें जो हम लोग वो यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और प्लूरल वाला यूज करते हैं. ओके, द नेक्स्ट वन इज हैज. ही हैज ए न्यू हेयर कट. उसने एक न्यू हेयर कट लिया. ओके, इट हैज ए होल नियर द डोर. ओके, द वॉशिंग मशीन हैज ए लीक इन इट. ओके, द नेक्स्ट वन इज मेक सेंटेंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस? Sentence give you a proper information about something. In sentence, sentence must contain subject, verb, and object. Without subject, definitely it will never give you a proper sense, and without verb, it will never give you a proper sense. For example, when we ask from someone, where is he and where is she, and he is reply on playing in the ground, that it will give a proper sense. But if we write on the notebook playing in the ground, it will never give you a proper sense. Who is playing in the ground? Okay, तो सेंटेंस हमें प्रॉपर सेंस देना चाहिए. उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें वर्ब होना चाहिए, उसमें ऑब्जेक्ट होना चाहिए. ओके, द नेक्स्ट वन इज adverb and then is the collective noun. What is the meaning of the collective noun? Okay, collective noun, as you know that noun is the name of person, place and things. What is the meaning of the collective noun? When we talk about a group as a whole, okay, when we talk about crowd, when we talk about family, we use that. These all the example are fall under the category of collective noun. For example, he come from a huge family. ओके, अब जो फैमिली है यहाँ पे कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट करती है. फैमिली में एक पर्सन नहीं है, फैमिली में बहुत सारे पर्सन है. आपके कंबाइंड फैमिली सिस्टम हो सकता है. अगर कंबाइंड फैमिली सिस्टम नहीं भी है तो फिर भी आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स हैं, मदर है, फादर है, आपके ब्रदर है, आपकी सिस्टर है, देन आप खुद हो, तो आपका ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है. तो ये सब मिलके आपकी एक फैमिली बनते हैं. लेकिन हम यहाँ पे फैमिली हम लोग यूज कर रहे हैं तो इसके लिए एक कलेक्टिव नाउन आएगा, एक वर्ड यूज करते हैं तो फैमिली में बहुत सारे आगे लोग आ जाते हैं. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास, ओके, देन इज आल्सो कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द paragraph. Let's move to the chapter. I will give you. Let's move. Okay, let's start the translation of the chapter number 2 dialogue. Okay, कासिम, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम अंकल. कासिम जो है वो सबसे पहले क्या कर रहा है, उसने स्टार्ट की कन्वर्सेशन स्टार्ट कासिम ने की है. वो सबसे पहले कह रहा है अस्सलाम वालेकुम अंकल. कासिम बोल रहा है अस्सलाम वालेकुम चचा जान. आगे चचा रिप्लाई कर रहा है अंकल वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. आगे अंकल रिप्लाई करने के साथ ही क्वेश्चन स्टार्ट कर देता है, मतलब उससे क्वेश्चन पूछता है. सबसे जो अच्छी कन्वर्सेशन होती है जब हम किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं या अपने किसी दोस्त से मिलते हैं, तो सबसे क्या चीज होती है, इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है. फॉर एग्जाम्पल, हमने उसे इस्लाम दिया है अस्सलाम वालेकुम, उसने हमें जवाब दे दिया वालेकुम अस्सलाम, देन वो चुप हो गया. तो कन्वर्सेशन
मतलब वो स्टॉप हो जाती है। सबसे अच्छी कन्वर्सेशन है कि एक अगर सवाल कर रहा है तो आप उसका जवाब दें, उसके बदले में आप उससे सवाल करें, तो देन आपकी कन्वर्सेशन, आपका डायलॉग, आपकी कम्युनिकेशन कंटिन्यू रहती है। अगर एक इंसान सवाल पूछे जा रहा है, दूसरा सिर्फ रिप्लाई कर रहा है, तो वो कन्वर्सेशन थोड़ी देर बाद बंद हो जाती है। मतलब वो इतनी गुड कम्युनिकेशन या अच्छी वाली कन्वर्सेशन नहीं होती। ओके, तो एक कन्वर्सेशन के रूल होते हैं जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं। तो उस रूल में सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी बात ये भी है कि जब आपसे कोई क्वेश्चन करे, आप उसका रिप्लाई करें, और देन उसके क्वेश्चन के बदले में आप भी उससे क्वेश्चन करें। ओके, तो अंकल उससे सवाल पूछता है, वेयर हैव यू बीन। अब इधर उन्होंने हैव का इस्तेमाल किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, वेयर हैव यू बीन कासिम। कासिम, अब जो अंकल है वो पूछ रहा है कासिम से, कासिम आप कहाँ रहे हो। ओके, अब फिर वो सवाल करके एक और कर रहा है, वी हैव मेट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। हम लोग काफी अरसे के बाद मिल रहे हैं। ओके, अगर कासिम रिप्लाई करता है, आई हैव बीन टू सऊदी अरेबिया। मैं सऊदी अरेबिया गया हुआ था। आगे वो अंकल को रिप्लाई कर रहा है और उसके बाद खुद ही जवाब दे रहा है, अंकल मैं सऊदी अरेबिया गया हुआ था, आई हैव जस्ट कम बैक। जस्ट का मतलब हम लोग यूज करते हैं जिसमें हम लोग अभी अभी रिसेंटली कोई काम किया हो, या रिसेंटली हम लोग वो काम स्टार्ट किया हो, या रिसेंटली वो काम फिनिश किया हो, तो देन हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, जस्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहीं जा रहे हो, तो हम लोग मतलब हम लोग कहीं पहुंचना हो, हमारे घर वालों की कॉल आए कि आप पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे, तो हम लोग बोले आई हैव जस्ट रीच्ड, कि मैं अभी अभी पहुंचा हूँ। तो जस्ट का वर्ड हम लोग यूज करते हैं रिसेंटली जो काम हम लोगों ने कंप्लीट किया हो। अंकल आई हैव जस्ट कम बैक, कि मैं इसी साल या अभी थोड़े दिनों में ही वापस आया हूँ। आगे अंकल उसे कहता है, वाई डिड यू गो टू सऊदी अरेबिया। आप सऊदी अरब किस लिए गए थे। ओके, आगे कासिम रिप्लाई करता है, you know father is going a job father is doing a job there and mother is there too. ओके, कासिम कहता है, आप जानते हैं अब्बू वहाँ मुलाजमत करते हैं और अम्मी जान भी वहीं पर हैं। आई वेंट टू सी देम, मैं उन्हें देखने गया था, particularly मदर बिकॉज शी वाज इल, खसूसन तौर पर अम्मी जान से मिलने गया था क्यों ना कि वो बीमार थी। अब उन्होंने इधर से हम लोगों को एक ब्रैकेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, हु वाज इल। ओके, कौन बीमार था, मदर वाज इल। किसकी मदर, कासिम की मदर। वो कौन बीमार थी, वो किधर थी, वो सऊदी अरब में थी। ओके, दी अब जो नेक्स्ट अंकल पूछ रहा है, आई एम सॉरी टू हियर दैट, मुझे ये सुन के अफसोस हुआ। हाउ इज शी नाउ, अब वो कैसी हैं। कासिम रिप्लाई कर रहा है, शी इज फाइन, अब वो ठीक है अंकल चचा, थैंक यू, शुक्रिया। शी वॉज नाउ फुली रिकवर्ड, अब वो मतलब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गई हैं। Uncle, your school, I hear you just reopened after vacation and I don't think you have missed much. मैंने सुना है कि आपका स्कूल छुट्टियों के बाद हाल ही में दोबारा खुला है, और मैं नहीं समझता कि आपका ज्यादा नुकसान हुआ है। अब वो ये क्यों बोल रहा है, कि वो ये बोल रहा है कि वो क्योंकि वो वेकेशन पे किया हुआ था सऊदी अरब। ओके, वो अभी अभी कुछ दिनों पहले ही या थोड़े दिन पहले ही वापस आया है। तो अंकल उससे बोल रहा है कि तुम्हारी पहले तो वेकेशन चल रही थी, वेकेशन के बाद स्कूल को रीओपन हुए हुए अभी कुछ ही दिन गुजरे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा ज्यादा नुकसान हुआ होगा। अब नुकसान, कौन से नुकसान की बात हो रही है, यहाँ पे वो सिलेबस कवर की बात कर रहा है कि यार डेफिनेटली जब आप स्कूल में जाते हो, अपनी क्लासेस मिस करते हो, तो आप अपना काफी सारा सिलेबस मतलब मिस कर देते हो, काफी सारी क्लासेस मिस कर देते हो, तो आपको फिर जाके अंडरस्टैंड करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, क्योंकि आपका कैलिबर दूसरे स्टूडेंट्स के साथ मैच नहीं कर रहा होता। तो वो उससे कह रहा है कि मुझे यकीन है कि आपको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा स्टडी के हवाले से। ओके, आई थिंक with just a little extra effort you could easily make up your deficiency in your studies. मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी ज्यादा मेहनत से आप पढ़ाई में अपनी कमी को आसानी से पूरा कर सकते हैं।
आगे कासम, इधर फिर एक क्वेश्चन ब्रैकेट में है, हाउ विल कासम कवर द डेफिशिएंसी इन स्टडीज, कि कासम जो भी उसकी कमी है स्टडी में आ गई है इस गैप की वजह से, जो उसने गैप लिया है, कौन सा गैप, जो वो वोकेशन पे गया हुआ था अपने पेरेंट्स के पास सऊदी अरेबिया, तो वो कह रहा है कि जब वो उधर था तो उस दौरान स्कूल रीओपन हो गए, तो उसका जो स्टडी में गैप आया है उस गैप को वो कैसे रिकवर करेगा, कैसे फिलअप करेगा। तो डेफिनेटली ही विल he will fulfill your he will make up deficiency by doing hard work। ओके, कि हार्ड वर्क के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप अपनी कोई भी चीज अचीव कर लो। द नेक्स्ट वन इज, कासिम रिप्लाई करता है, नो अंकल, आई हैव सर्टेनली मिस्ड माय इंपॉर्टेंट लेसन एंड आई नो आई विल हैव टू वर्क प्रीटी हार्ड। कासिम, नहीं चाचा जान, यकीनन मेरे कहीं अहम असबाक रह गए हैं और मैं जानता हूँ मुझे सख्त मेहनत करना होगी। आई एम ग्लैड आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग सो, और मैं खुश हूं कि मैंने पहले से ही ऐसा करना शुरू कर दिया है। ऑलरेडी मतलब उसने, अंकल उसे अब एडवाइस कर रहा है कि तुम्हें थोड़ी सी वर्क हार्ड करना चाहिए, तुम्हारी क्लासेस मिस हो गई हैं, ताकि तुम कवर अप कर सको, बाकी स्टूडेंट के साथ मैच अप कर सको। लेकिन वो उसे अंकल अब कह रहा है, तो कह रहा है अंकल मैंने ऑलरेडी इन चीजों पे अमल करना शुरू कर दिया है। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग वर्क, कि मैंने इन चीजों पे अमल करना शुरू कर दिया। आई हैव स्टार्टेड अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली एंड माई ब्रदर हैज स्टार्टेड हेल्पिंग मी टू, मैंने बाकायदगी से जमातों में हाजिरी देना शुरू कर दी है और मेरे भाईजान ने भी मेरी मदद करना शुरू कर दी है। ओके, ये अब यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो हैज एंड हैव का या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज है वो तीन चीजों के लिए कर रहे हैं, एक्सपीरियंस के लिए, चेंजिंग सिचुएशन के लिए, और थर्ड वन क्या था हमारा, कि कॉन्टिन्यू सिचुएशन है, कि वो पास्ट में स्टार्ट हुई है और वो स्टिल कंटिन्यू है, तो उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो इधर उन्होंने आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग सो, मतलब उसने पहले से ही ऐसा करना शुरू कर दिया है और अभी तक वो कर रहा है। ये वो उसकी एग्जांपल आ गई कि एक चेंजिंग सिचुएशन के लिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव ऑन करते हैं। अंकल, व्हेन आर योर एग्जाम स्टार्टिंग? कासिम से अंकल सवाल कर रहा है, कासिम तुम्हारे इम्तिहानात कब शुरू हो रहे हैं? ओके, कासिम से वो सवाल कर रहा है। कासिम रिप्लाई करता है, माई एग्जाम आर नॉट टू फॉर, दैट्स वाई आई हैव कम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया, आई नेवर वांटेड टू मिस माई एग्जाम। मेरे इम्तिहान, अब कासिम रिप्लाई करता है, मेरे इम्तिहानात दूर नहीं हैं, यही वजह है कि मैं सऊदी अरेबिया से वापस आ गया हूँ, क्योंकि मैं अपने इम्तिहानात नहीं छोड़ना चाहता किसी भी हालत में। डज कासिम वांट टू मिस द एग्जाम? अंदर क्वेश्चन किया है, डज कासिम वांट टू मिस द एग्जाम, क्या कासिम अपने इम्तिहानात छोड़ना चाहता है? नो उसने अभी अभी रिप्लाई किया है कि आई नेवर वांट टू मिस माय एग्जाम, मैं किसी भी हालत में अपने एग्जाम छोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए वो सऊदी अरेबिया से वापस आया। आगे कंटिन्यू करते हैं। अंकल, हाउ अबाउट योर कोर्स इन साइंस, हैव यू फिनिश इट? आपके साइंस के निसाब का क्या हाल है, क्या आपने उसे खत्म कर लिया है? कासिम रिप्लाई करता है, वी हैव नियरली फिनिश्ड आवर साइंस कोर्स, ओनली a few chapters are left, I am worried so much about science, my real worry is that I have missed a number of lessons in English and math। हमने साइंस का मज़ामीन, वी हैव नियरली फिनिश्ड आवर साइंस कोर्स, हमने अपने साइंस का निसाब तकरीबन ख़त्म कर लिया है। ओनली फ्यू चैप्टर आर लेफ्ट, बहुत थोड़े चैप्टर असबाक रह गए हैं। आई एम नॉट वरीड सो मच अबाउट साइंस, मुझे साइंस के बारे में इतनी फिक्र नहीं है। माई रियल वरीड इज दैट आई हैव मिस्ड ए नंबर ऑफ लेसन इन इंग्लिश एंड मैथ, मेरी असल परेशानी ये है कि मेरी अंग्रेजी और रियाजी के बहुत से असबाक
छूट गए हैं। आई फाइंड दीज टू सब्जेक्ट रेदर टफ एंड दे आर इम्पोर्टेंट टू। मैं इन दोनों मजामीन को खासा मुश्किल समझता हूँ और ये दोनों अहम भी हैं। बट आई एम ग्लैड, मुझे खुशी है, दैट माई ब्रदर हैज स्टार्टेड हेल्पिंग मी आउट इन दिस सब्जेक्ट। लेकिन मैं खुश हूँ कि मेरे भाई ने इन मजामीन में मेरी मदद करना शुरू कर दी है। माई ब्रदर इज ए टीचर, मेरे भाई टीचर हैं। अब वो प्रोफेशन की बात कर रहा है, अपने भाई के प्रोफेशन के बारे में बता रहा है कि मेरे भाई का प्रोफेशन क्या है। आई एम ग्लैड दैट माई ब्रदर हैज स्टार्टेड हेल्पिंग मी आउट इन दिस सब्जेक्ट। मैं खुश हूँ कि मेरे भाई ने मेरी मदद करना शुरू कर दी है। माई ब्रदर इज ए टीचर, मेरे भाई उस्ताद हैं, यू नो, जैसा कि आप जानते हैं। एंड ही हैज टफ एंड ही हैज taught दिस सब्जेक्ट फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स। आप जानते हैं कि मेरे भाई जान एक उस्ताद हैं और उन्होंने कई साल से ये मज़ामीन पढ़ा रहे हैं। अब उन्होंने फिर ब्रैकेट में क्वेश्चन किया है, हु वाज हेल्पिंग कासिम इन हिज सब्जेक्ट। ओके, हम लोग जो डायलॉग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर रहे हैं। जिधर भी हम लोगों ने यूज किया, मोस्टली हम लोगों ने जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया वो हैव का यूज आ रहा है, ये हैज का यूज आ रहा है। लेकिन वो जो क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन में वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कर रहे हैं। और जो आंसर है, मतलब इधर जो उन्होंने लास्ट पे क्वेश्चन किया हमसे, हु वाज हेल्पिंग कासिम इन स्टडी, तो ये हम लोगों ने पास्ट का मतलब हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है। हु वाज हेल्पिंग, उसकी कौन मदद कर रहा था, कासिम की कौन मदद कर रहा है इन स्टडी, उसकी स्टडी में। तो जब मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो स्टूडेंट मतलब कर जाते हैं, आप लोग अटेम्प्टिंग क्वेश्चन में या अटेम्प्टिंग पेपर, जो सबसे उनका ड्रॉबैक होता है और जो मिस्टेकनली और रिपीटली मिस्टेक मतलब ये चीज करते हैं स्टूडेंट, वो ये होती है कि जो क्वेश्चन होता है वो अगर हमसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में पूछा होता है तो हम लोग जो आंसर होता है वो हम लोग पास्ट में दे रहे होते हैं, या हम लोग आंसर जो है प्रेजेंट परफेक्ट में दे रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस सेंटेंस में हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है उसी सेंटेंस में रिप्लाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमसे क्वेश्चन प्रेजेंट इंडेफिनिट में पूछ रहे हैं कि हाल ही की बात हो रही है, तो हम लोगों को आंसर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में देना चाहिए, वही हेल्पिंग वर्ब चूज करनी चाहिए। अगर हमसे पास्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पास्ट के हेल्पिंग वर्ब करके, तो हम लोग जब आंसर दे रहे होते हैं, रिप्लाई कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली अंडरस्टूड बात है कि हम लोगों को पास्ट में ही रिप्लाई करना चाहिए। जैसे अगर उधर से पूछा जा रहा है हु वाज हेल्पिंग कासम इन स्टडी, तो इधर हमसे पास्ट वाला सेंटेंस यूज किया गया कि उसकी कौन मदद कर रहा था। लेकिन जब वो इधर से बता रहे हैं कि वो मतलब जब वो अपनी कन्वर्सेशन में, अपने डायलॉग में अंकल को बता रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर रहा है कि मेरे भाई बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं और उसने मेरी मदद करना शुरू कर दिया है। लेकिन जब हम लोग रिप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, तो हम लोग जवाब देंगे हिज ब्रदर वाज हेल्पिंग हिम इन हिज स्टडीज। तो हम लोग भी पास्ट वाला, पास्ट कंटिन्यू वाला हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे। हिज ब्रदर वाज हेल्पिंग हिम हिम मीन कासिम इन ही स्टडी, उसकी स्टडी में कासिम उसकी उसका ब्रदर जो है कासिम की हेल्प कर रहा है। ओके, लेट्स वाइंड अप हियर। आई विल इन आवर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग अपना जो बाकी का है उसे कंप्लीट आउट करेंगे। आई होप सो दैट कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।